آج ویو 360 میں کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اموات کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ. اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ کووڈ-19 کی وبا کے ساتھ ساتھ فلو سیزن کا آغاز, دنیا کو دوہری وبا کے خطرے کا سامنا. اور پاکستان میں ٹیکسوں کے پیچیدہ نظام کو آسان بنانے کی کوشش. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان, آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. اس ہفتے دنیا بھر میں کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ کا ہنسا چھو گئی. یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے, یہ وہ پیارے ہیں جو اپنے خاندانوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے اور اپنے ساتھ بہت سے خواب, امیدیں اور ارادے بھی لے گئے. کتنوں کو بے سہارا چھوڑ گئے. اور کووڈ-19 کے سبب اموات کا یہ سلسلہ تھمتا نظر نہیں آ رہا. بھارت, جہاں پہ دنیا میں اس وقت امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اموات اس وبا کے باعث ہوئی ہیں, وہاں اب تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز سے کہیں زیادہ اصل میں کیسز وہاں موجود ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں میں کرونا وائرس کے خلاف قدرتی طور پہ مدافعت جو پیدا ہوتی ہے اس کے ثبوت ملے ہیں. اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کا شکار ہونے والا ہر شخص بیمار نہیں ہوتا, لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اپنے جراثیم ہم دوسروں کو منتقل کر سکتے ہیں اور کسی اور کی موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اس پوری صورتحال میں ایک تسلی بخش بات یہ سامنے آئی ہے کہ اب عالمی سطح پہ اموات کی شرح میں کچھ کمی ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ایسے لوگ جو کووڈ-19 کا شکار ہوتے ہیں ان کی حالت بھی بگڑنے سے بچانے میں کچھ کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے. آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں اسی بارے میں ایک رپورٹ سے. اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات میں اضافہ جاری ہے, ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ جگہوں پر اموات کی شرح کم ہونے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا CDC کا کہنا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 19 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں نمونیا, انفلوئنزا یا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والی اموات کی شرح 6.6% تھی. یہ شرح اس سے پہلے کے ہفتے میں 10% تھی. برطانیہ میں کی جانے والی ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگست میں اموات کی شرح 1.5% رہی, جبکہ اپریل میں وبا کی بلند ترین سطح کے دوران یہ شرح 6% سے زائد تھی. آکسفورڈ یونیورسٹی میں میڈیسن کے پروفیسر مارٹن لانڈرے کا کہنا ہے کہ اب طبی کارکنوں کو بھی مریضوں کے علاج کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں, جن میں سے ایک اسٹیرائڈ کا استعمال بھی شامل ہے جسے ڈیکسامیتھازون کہتے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر موجود ان مریضوں کے لیے ایک آسان, سستے اور وسیع پیمانے پر دستیاب علاج کے ذریعے موت کی شرح میں 1/3 کمی کر سکتے ہیں. معلوم نہیں تھا, اب ہم یہ کرتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ریمڈیسیوار دوا اسپتال میں قیام کو کم کرتی ہے, لیکن ہم ابھی یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ حقیقت میں زندگی بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے, اور لوگوں کو اسپتال سے دور رکھنا یا ان کے اسپتال میں ٹھہرنے کی مدت کو کم کر سکنا اہم ہے. تاہم یہ زندگی بچانے میں کی فیکٹر نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ کیا ہم زندگیوں کو بچا سکتے ہیں. مارٹن لانڈرے برطانیہ کی ریکوری نامی نیشنل کلینکل ٹرائل پروگرام سے منسلک ہیں. یہ ادارہ موجودہ ادویات کی افادیت کو جانچنے کے لیے بڑے پیمانے پر ان کا مطالعہ کرتا ہے. ہائیڈروکسی کلوروکوین نامی دوا اپنی مشہوری اور اس کے حق میں وکالت کے باوجود ہسپتال میں مریضوں کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ لوپیناوار, ریٹینوار HIV کے علاج کے طور پر وسیع پیمانے پر تجویز اور استعمال کی جاتی ہے, یہ بھی کام نہیں کر رہی. اب چونکہ کمیونٹیز اور یونیورسٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح بہتر طریقے سے وائرس سے بچا جائے, کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 دوسرے وائرسز کی طرح موجود رہے گا. فی الحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ متعدی بیماری بن سکتی ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے, جیسا کہ ہم HIV کے ساتھ رہنا سیکھ گئے ہیں یا دوسری متعدی امراض کے ساتھ رہنا سیکھ چکے ہیں. ان میں سے بیشتر ماضی میں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئیں. US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سابق ڈاکٹر جیسی گڈمین اب جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں چیف سائنسدان ہیں. کووڈ کے ساتھ ہمیں مسلسل طور پر ایک چیلنج کا سامنا رہے گا. اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اس اثر کو کم کرنے کے طریقے جانتے ہیں. اب ہم جان چکے ہیں کہ سماجی فاصلے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. اب ہم جان چکے ہیں کہ ماسک پہننے سے اپنے اور دوسروں کے لیے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے. ہمیں واقعی مستقل بنیادوں پر عوامی صحت سے متعلق پیغام رسانی کی ضرورت ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے معیشتوں کے چلتے رہنے اور لاک ڈاؤن میں جانے اور پھر نکلنے میں مدد ملے گی. مریامہ دیالو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ. کرونا وائرس سے صرف وہی لوگ متاثر نہیں ہوئے جو اس کی وجہ سے بیمار پڑے ہیں, بلکہ ہم سب کو ہی اس وائرس سے بچنے کے لیے جو سماجی فاصلہ اختیار کرنا پڑا, جو دوری اختیار کرنی پڑی اور جو ہم اب بھی کر رہے ہیں, اس کے ماہرین کے مطابق ہماری نفسیات پہ بہت گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح ورزش انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح ملنا جلنا بھی ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو دوریاں ہمیں جسمانی طور پہ اختیار کرنی پڑیں وہ ذہنی طور پہ ہمیں اپنوں سے کس طرح دور کر رہی ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ کرونا کی وبا اور سماجی فاصلہ رکھنے کی احتیاطی تدابیر پر زور نے ہمیں کچھ اور تنہا اور لوگوں کی قربت نے کچھ پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں سب سے زیادہ زور تنہائی اور اکیلے پن کے اثرات پر دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ وہ پہلو ہے جو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو طویل عرصے تک تنہا رہتے ہیں، مثلاً جیل، اسپتال یا پھر آپ کہہ لیں انٹارکٹیکا وغیرہ میں، تو ان کی سماجی روابط کی صلاحیتیں یقیناً کچھ متاثر ہوتی ہیں۔ مارکیان پروہسکو نے تقریباً 2 مہینے قطب جنوبی میں گزارے۔ وہ 2019 میں قطبی علاقے میں رہنے کے تجربے پر کتاب لکھنے کے لیے وہاں گئے تھے، اور قرنطینہ کے دنوں نے انہیں اس تجربے کی یاد دلا دی۔ جب آپ گھر پہ رہتے ہیں تو بعض اوقات کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ تاہم جب حالات آپ کو تنہا رہنے پر مجبور کر دیں تو اچانک آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو پابند ہو گئے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی کہیں نہیں جا سکتے۔ قطب جنوبی میں بھی بالکل ایسا ہی احساس ہوتا ہے۔ اس مہم جوئی سے واپس معمول کی طرف لوٹنے میں مارکیان کو کچھ وقت لگا۔ جب میں واپس آیا تو ایک طرف تو میں کچھ ہفتے تھوڑا الگ تھلگ رہنا چاہتا تھا، صرف اپنے گھر والوں سے ہی بات کرتا تھا، لیکن میں اب کیسے وضاحت کروں، یعنی معمول کی زندگی شروع میں کچھ بے معنی سی لگنے لگی تھی۔ جب میں باہر جاتا تو سوچتا کہ یہ سب لوگ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس بارے میں شبے کی گنجائش کم ہے کہ وبا کے دوران لوگ سماجی میل ملاپ کی اپنی کچھ صلاحیتیں کھو دیں گے۔ تنہائی میں گفتگو کی صلاحیت ایسے ہی متاثر ہوتی ہے جیسے کہ ورزش کے بغیر پٹھوں کی نشو و نما رکنا۔ اس لیے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ انسانوں سے میل ملاپ، ورزش، کام، خوراک اور نیند سے کسی طور کم اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم جزو ہے۔ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوارنٹین میں آدھا گھنٹہ ورزش پر صرف کرنا ضروری ہے تو انہیں لوگوں سے بات چیت کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق چھوٹی سی بات بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ اگر لوگ اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو میرا انہیں مشورہ ہے کہ وہ اپنے کسی ایسے پرانے دوست کو کال کریں یا ملاقات کریں جسے ملے عرصہ ہو گیا ہو۔ جلد یا بدیر یہ وبا ختم ہو ہی جائے گی اور لوگ پھر سے معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آئیں گے۔ اینا رائس کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ جب تک کرونا وائرس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین سامنے نہیں آ جاتی تب تک ماسک، سوشل ڈسٹنسنگ اور ٹیسٹ ہی اس لڑائی میں ہمارے ہتھیار ہوں گے۔ امریکہ میں دوا ساز کمپنی ایبٹ کا بنایا ایک ریپڈ ٹیسٹ اب بڑے پیمانے پہ استعمال کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ چند دنوں نہیں بلکہ چند منٹوں میں نتائج پیش کر سکتا ہے۔ تائیوان میں بھی ایک بایو ٹیک کمپنی نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جو ایک ہی دن میں ہزاروں ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تعلیمی اداروں اور کاروباروں کو محفوظ طریقے سے اور تیزی سے کھولنے میں کس طرح مدد دے سکتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طبی ماہرین متفق ہیں کہ تیز اور مؤثر ٹیسٹنگ کا نظام کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تائیوان کی ایک بایو ٹیک کمپنی TCI کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کا ایک محفوظ اور قابل اعتماد حل تلاش کر لیا ہے۔ جراثیم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم نے انسانی حرکات و سکنات کی طرز پر یہ روبوٹک بازو بنائے ہیں تاکہ جراثیم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ 3 روبوٹک بازوؤں پر مشتمل اس مشین کا نام QVC96 ہے۔ اسے بنانے والی کمپنی کے مطابق یہ بالکل انسانوں کی طرح کام کرتی ہے۔ کمپنی کے سپروائزر آربن کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ تربیت یافتہ ٹیکنیکل افراد کی طرح مستقل مزاجی اور تیزی کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے۔
QVS 96S can produce ये रोबोट एक दिन में तकरीबन 2000 टेस्ट कर सकता है। अगर ऐसी 100 मशीनें JFK एयरपोर्ट या सिंगापुर एयरपोर्ट पर नस्ब कर दी जाएं, तो ये एयरपोर्ट्स अपनी तमाम फ्लाइट्स बहाल करके मुसाफिरों के लिए महफूज सफर और मुल्की मईशत की बहाली को मुमकिन बना सकते हैं। by country economy. ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे के एक अस्पताल से मुंसलिक डॉक्टर ली शिनमिंग फ्लू सीजन के दौरान मंजर आम पर आने वाली इस नई टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करते हैं। ये मशीन बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से नमूने में फ्लू या कोविड-19 की मौजूदगी का तयन कर सकती है। ये वबा का फैलाव रोकने के लिए बहुत करामत है। आप नज़ले के मरीज को गलती से कोविड से मुतासरा समझकर करंतना में नहीं भेजेंगे। ताइवान के सरकारी इदारों, डिजीज कंट्रोल सेंटर और मुल्क के 3 अस्पतालों ने इस नए रोबोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अरश अरब असादी के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। ख्याल था कि मौसम बदलेगा तो कोरोना वायरस मर जाएगा, लेकिन सर्दी से गर्मी आई और फिर सर्दी, वायरस अपनी जगह मौजूद है। बल्कि अब फ्लू सीज़न का आगाज़ हो रहा है और माहिरीन को खदशा है कि बाज़ मुल्कों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की दोहरी वबा या ट्विनडेमिक का सामना हो सकता है। वैसे तो फ्लू में ज़्यादातर लोग खांसी, बुखार और ज़ुकाम महसूस करते हैं, लेकिन अगर वायरस बिगड़ जाए और निमोनिया लाहक हो जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। फिर चूँकि कोविड-19 और फ्लू की कुछ अलामात मिलती जुलती हैं, मरीज़ की दुरुस्त तशख़ीस में अगर देर हो जाए तो वो भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। सबा शाह खान बता रही हैं कि इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 का दोहरा ख़तरा मुल्कों में सेहत के निज़ाम को कैसे मुतासिर कर सकता है। अमरीकी माहिरीन सेहत का कहना है कि इस साल पहले के मुकाबले में फ्लू वैक्सीन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अमरीका में वबाई अमराज की तहकीक और इनकी रोकथाम का वफाकी इदारा सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल या CDC 6 माह और इससे बड़ी उम्र के तमाम अफराद को फ्लू वैक्सीन लेने की तजवीज़ दे रहा है। इस बात का इम्कान है कि कुछ अफराद को बैक वक्त कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा दोनों होंगे, जो जाहिर है इंतहाई खतरनाक होगा और इनमें से एक या दोनों से अमवात का खतरा बढ़ जाएगा। लिहाजा हम इन्फ्लुएंजा और कोविड से बचने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं यकीनन करना चाहते हैं। दोनों सांस के निज़ाम को मुतासिर करने वाले और मोहलिक हो सकने वाले वायरस हैं, जबकि कुर्राए अर्ज़ के शुमाली हिस्से में फ्लू का मौसम सर पर है। इस मौसम सरमा में हम इस सूरत में दाखिल हो रहे हैं जैसे हमारे हाथ बंधे हों। हम ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहां वैक्सीन्स पर एतमाद कम होता जा रहा है। CDC के मुताबिक कोरोना की वबा के दौरान मदाफ़ियती टीके लगवाने वाले बच्चों की तादाद में बड़ी कमी हुई है। इसकी बड़ी वजह वालिदैन का वबा के खदशे के पेश नज़र अपने बच्चों को मामूल की वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों और क्लिनिक्स पर ना लेकर आना है। ताहम अमरीकी माहिरीन के मुताबिक वबा से पहले और इसके अलावा भी बहुत से अमरीकी फ्लू वैक्सीन नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें इसके मौसर होने पर शुकूक हैं। इदारे के मुताबिक पिछले फ्लू सीजन के दौरान इन्फ्लुएंजा से मरने वाले 80% बच्चों को वैक्सीन नहीं दी गई थी और ड्यूक यूनिवर्सिटी की तहकीक से पता चलता है कि 2018 में सिर्फ 1/3 बालिग अमरीकियों ने फ्लू शॉट लिया। ये मेरे लिए परेशानी का बायस है कि जो कम्युनिटीज कोविड से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं वो फ्लू से भी ज्यादा मुतासिर होती रही हैं और हम जानते हैं कि इन कम्युनिटीज में वैक्सीनेशन की शरह कम है। इन कम्युनिटीज़ में बच्चे, हामला ख़वातीन, उम्र रसीदा अफराद और सियाफाम और दूसरी अक़लियतें शामिल हैं। चूँकि फ्लू और कोविड-19 की अलामात मिलती जुलती हैं, इसलिए डॉक्टर्स के लिए इनके दरमियान तफरीक करना भी मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर ग्रेगरी पोलैंड कहते हैं कि इन अमराज के खिलाफ दस्तियाब मालूमात उनके खिलाफ एक मौसर हथियार साबित हो सकती है। आप कोविड-19 या इन्फ्लुएंजा से उस वक्त तक मुतासर नहीं हो सकते जब तक आप उसे सांस के जरिए या हाथों से अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूकर अपने जिस्म में दाखिल नहीं कर लेते। और ये जानना एक बड़ी ताकत है, क्योंकि मास्क पहनना, जिस्मानी फासला, अपने हाथों को जरासीम से पाक रखना और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन कराना, ये वो ताकतवर इक़दामात हैं जो आप उठा सकते हैं। अगर चाहे मुकम्मल जमानत नहीं, लेकिन नज़दीक तरीन ज़रूर है।
डॉक्टर ग्रेगरी कहते हैं कि गालिब इम्कान है कि उन इलाकों में जहां लोगों की अक्सरियत फ्लू की वैक्सीन लेगी और एहतियाती तदाबीर पर अमल करेगी, वहां इन्फ्लुएंजा के वाक़यात में ड्रामाई हद तक कमी रहेगी। सपा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वोरहेस, न्यू जर्सी। पाकिस्तान में हुकूमत के मुताबिक कोविड-19 के केसेस में मुस्तकिल कमी आ रही है, लेकिन कोरोना वायरस की मौजूदगी में फ्लू सीजन की आमद क्या माहिरीन सेहत के लिए भी तशवीश का बाइस है? और उसके अलावा अगर निज़ाम सेहत को कोई चैलेंज दरपेश होता है तो फिर उससे निपटने के लिए सिस्टम्स किस हद तक तैयार हैं? इस बारे में सबा शाह खान ने आगा खान यूनिवर्सिटी से मुंसलिक इन्फेक्शस डिजीज़ की माहिर डॉक्टर बुशरा जमील से बात की। हर विंटर सीजन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से खतरा थोड़ा इस दफा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि कोविड मौजूद है, कोविड खत्म नहीं हुआ और एक्सपेक्टेशन ये है कि हर थोड़े हफ्तों के बाद या हर चंद महीनों में नंबर ऑफ केसेस बढ़ेगा, तो थोड़े छोटे छोटे सर्जेस आते रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट ऑप्टिमल, लेकिन इसको काफी हद तक अपग्रेड कर दिया गया। यहाँ तक कि किसी टाइम पे भी ड्यूरिंग द पेंडेमिक अप टिल नाउ सिस्टम ओवरवेल्म नहीं हुआ। विंटर मंथ्स में जिस इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा होता है वो इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी मौजूद है, जनरली अक्टूबर में अवेलेबल हो जाती है। परफेक्ट वैक्सीन नहीं है, इम्परफेक्ट है, लेकिन इट डज प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। तो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के लिए तो बेहद जरूरी है कि वैक्सीनेशन हो ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स का बचाव हो सके। दूसरा ये है कि इन्फ्लुएंजा की ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो एंटीवायरल अवेलेबल हैं। तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो ये कि डायग्नोस्टिक वर्कअप किया जाए, डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाए ताकि पता चल जाए कि मर्ज है क्या, ताकि उसका सही इलाज किया जा सके। टेस्टिंग उन शहरों में जहां शायद अस्पताल मौजूद है बआसानी मुमकिन है, लेकिन उन छोटे इलाकों में जहां एक्सेस नहीं है, क्या इन इलाकों के लिए आपको कोई हिकमत अमली नजर आती है? NIH इस्लामाबाद पिछले कुछ साल से बहुत ज्यादा एक्टिव है। इन्फ्लुएंजा की सर्वेलेंस तो काफी टाइम से हो रही है मुल्क में। जो डायग्नोस्टिक कैपेसिटी है वो काफी हद तक बढ़ाई गई है NIH की लेवल पे। सो छोटे हॉस्पिटल, छोटे शहरों से NIH को एटलीस्ट ये मैसेज देना चाहिए कि उनके पास जो कैपेसिटी है तो दे कैन सेंड द सैंपल्स टू द सेंट्रल लेबोरेटरी इन इस्लामाबाद। जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस के लिए तो ऑलरेडी ये सिस्टम इन प्लेस है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर कोई सस्पेक्टेड केस हो तो दे कैन सेंड द सैंपल टू इस्लामाबाद। इसी तरह इन्फ्लुएंजा के लिए भी या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस के लिए भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और मुझे पूरा यकीन है कि NIH ये मैसेज सब में स्प्रेड करेगा कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए इनिशियली इस्लामाबाद भेजे जाएं। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प वीडियोस के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। इसके अलावा हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम के पेजेस पे भी आपको बहुत सा दिलचस्प कंटेंट मिलेगा। आजकल आप में से बहुत से लोग इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मसरूफ होंगे। पाकिस्तान में टैक्सों की वसूली के लिए वफाकी और सूबाई सतह पे मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं और टैक्सों का निज़ाम समझना आम लोगों के लिए ज़रा मुश्किल बात है। इसको आसान बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, आज लाहौर से समन खान यही बता रही हैं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, टोकन टैक्स की अदायगी और बैंकों में दौरान लेन देन इजाफी रकम देने से बचना है तो टैक्स दहिंदा बनिए। पाकिस्तान में वफाकी सतह पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सूबाई सतह पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स अदायगी का रुझान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टैक्सों के गोशवारे जमा कराना अब भी बहुत से लोगों के लिए आसान नहीं। इनकम टैक्स को ही ले ले, हुकूमत की जानिब से पेश करदा टैक्स ऐप के बावजूद अक्सर शहरी वकला की मदद लेते हैं। सिर्फ इनकम और अखराजात नहीं लिखे जाते, वेल्थ स्टेटमेंट बनाना पड़ती है और फिर उसमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है और काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें ऐड करना पड़ती है। अभी उतना आसान नहीं हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसका टैक्स का कोई तजर्बा नहीं है पहले से कि वो ये गोशवारा फिल करके जमा करवा सके। आमदन पर टैक्स के अलावा शहरी सूबाई सतह पर 69 मुख्तलिफ शोबों में लेन देन पर भी टैक्स अदा करते हैं। इनमें रेस्टोरेंट में खाना, होटल में क़याम, टेलीकॉम सर्विसेज और तामीरात जैसे शोबे शामिल हैं। कारोबारी इदारे सार्फिन से हासिल करदा ये टैक्स माहाना बुनियादों पर सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा कराने के पाबंद हैं। कोविड-19 के बावजूद माली साल 2019 से 20 के दौरान इस मद में पंजाब के सूबाई खजाने में 108 अरब रुपए जमा हुए।
पंजाब हुकूमत ने आखिरी 3 माह के लिए पिछले माली साल के जो अप्रैल मई और जून के लिए कोई 25+ सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स का रेट 0% कर दिया था। कुछ ऐसी सर्विसेज थी जिन पे शायद थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट आया हो कोविड का, जैसे आपकी टेलीकॉम सर्विस है कि जो टेलीफोन का या इंटरनेट का इस्तेमाल है वो कोविड का दौरान बढ़ गया। तो इसलिए हमें ये 2-3 एस्पेक्ट से देखना पड़ता है। लेकिन सेल्स टैक्स का बड़ा हिस्सा सूबाई खजाने में नहीं पहुंच पाता। कई कारोबार अब भी कच्ची रसीदों पर खरीदो फरोख्त करके टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स निज़ाम को मौसर बनाने और इसके बारे में शहरियों की समझ बूझ बढ़ाने के लिए आगही वर्कशॉप्स मुनक्किद करती है, जहां बाज़-औक़ात सरकारी इदारों को भी अपनी जिम्मेदारियों का पता चलता है। जो हमारे इनकम टैक्स वगैरह हम कॉन्ट्रैक्टर का काटते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारा इंस्टीट्यूशन, तो ये सुपीरियर हम समझते थे इस लिहाज से कि पंजाब पे को टैक्स वो हमसे नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ ये क्लैरिटी हो गई है कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हमसे टैक्स ले सकती है। ज़रई अराजी पर टैक्स भी रेवेन्यू कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा है, जो बरसों नजरअंदाज रहा। अब 12 एकड़ से ज्यादा रकबा रखने वाले जमींदारों को टैक्स नेटवर्क का हिस्सा बना दिया गया है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक किसानों के लिए भी टैक्स अदायगी का तरीक़ाकार आसान बनाया जा रहा है। जिम्मेदार किस तरीके से वो उसके पास एक मुंशी रखे और वो उसका करे, फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे, फिर एक टैक्स फाइल बने, उसको कि जी आपने कितना खर्चा किया है, आज इतना उसने डीजल डलवाया है उसका खर्चा है, उसके आज इतनी बोरी खाद डलवाई है, आज बिजली का बिल इतना दिया। मतलब ये सारी चीज़ें इनको अकाउंट फॉर करना एक रजिस्टर फॉर्म में और टैक्स अथॉरिटीज़ को पेश करना, ये ज़मींदार के बस के काम नहीं था। हमने उनको दिया है कि जी आप खुद बताएं कि आपका कितनी आपकी इनकम हुई है, आप डिक्लेयर करें अपनी एग्रीकल्चर इनकम। गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हैं कि वो अगर समझती है कि इस आदमी की लैंड होल्डिंग इतनी है और इसका ज़्यादा है, इसने कम डिक्लेयर किया, तो एक अलहदा है, स्क्रूटनी में आप चेक कर सकते हैं। ज़रा इनकम टैक्स की मद में माली साल 2019 से 20 में तकरीबन 3 अरब रुपए हासिल हुए। हुकूमती इदारे आवाम के लिए टैक्सों की अदायगी का अमल आसान बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि आवाम को भी टैक्स कौमी फरीज़ा समझकर अदा करना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उन्हें उनका पैसा मुल्की तरक्की और फलाह बहबूद के प्रोग्रामों पर मौसर तरीके से इस्तेमाल होता भी दिखाई दे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। और अब बात करते हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात की। इस हफ्ते दोनों उम्मीदवारों के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा हुआ। इन डिबेट्स का मकसद तो ये होता है कि जो वोटर्स अभी तक अपनी राय का फैसला नहीं कर सके, वो दोनों उम्मीदवारों को एक साथ अपनी स्क्रीन्स पे देखें, उनकी शख्सियत और उनकी पॉलिसीज़ में मुवाजना करें और फिर अपनी राय कायम करें। लेकिन मंगल के रोज़ जो मुबाहिसा हुआ वो इस कदर धुआंधार और बेरब्त था कि तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इससे वोटर्स को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ होगा। इस मरतबा भी अमेरिका के सदारती इंतखाबात में लाखों वोटर्स पहली बार वोट डाल रहे होंगे। तो इस मुल्क में वोटर बनने के लिए क्या शराइत है, उनके बारे में जानते हैं इस मुख्तसर वीडियो में। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में कौन वोट डाल सकता है? अमेरिकी सदारती इंतखाब में वोट डालने का अहल होने के लिए अमेरिकी शहरी होना जरूरी है। इलेक्शन के दिन या इससे कबल 18 बरस उम्र होना जरूरी है और रिहाइश की शराइत पर पूरा उतरना जरूरी है, जो हर रियासत में मुख्तलिफ है। अपनी रियासत की वोटर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन से कबल वोटर का रजिस्टर होना भी जरूरी है। वो लोग जिनके पास अमेरिकी शहरियत नहीं, चाहे वो अमेरिका के मुस्तकिल रिहायशी ही क्यों न हो, अमेरिकी सदारती इंतखाबात में वोट नहीं डाल सकते। कुछ रियासतों में वो लोग भी वोट नहीं डाल सकते जो संगीन जराइम में सजा याफ्ता हो या फिर जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो। आम सदारती इंतखाब में वो अमेरिकी शहरी भी जो अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में रहते हैं वोट नहीं दे सकते। दुनिया भर में कोविड-19 से हलाक होने वालों की तादाद 10 लाख से बढ़ चुकी है और इसमें मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। इस मोहलिक मर्ज से बचाव का सिर्फ ये तरीका है कि एहतियात की जाए, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत पे अमल करें। इसी पैगाम के साथ हम आज का शो खत्म करेंगे। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।